Good evening, friends. Thanks for your valuable comments on my videos on Twitter, Who, and Twitter. I make sure I read all of them and post them on social media. Of late, what I've been noticing, viewers, is that some of your comments are so important that people need to take it also as advice. So thank you for your comments. Today, we will be speaking to two people, and the first speaker is Sanjat Patnaik. You remember he had come; he had earlier joined us in two sessions, and we will have Sandeep Phogat also to discuss the ever-growing significance of the dark net in our present lives, and whether Sushant was a victim of this. Was he a pawn in the hands of a nexus that thrives on the dark net? The latest news about the dark abuse of the dark net was when a child abuse case came out. They exposed a site with 400,000 members, which was taken down in a global police sting in Germany. The three main suspects, were accused of founding and maintaining the site, as well as giving members advice on how to avoid arrest, the German police said. So we'll speak about this case. Meanwhile, I'd like to welcome Sanjat to our channel. Thank you, Sanjat, for joining us. Yeah, good evening, Meena ma'am. Thank you very much for this opportunity. Yeah, and thank you for wanting to speak on this subject. We are looking forward to hear your views on this topic. Meanwhile, I'll just, Sanjat, just speak about this case that they revealed in Germany about these, this pornographic site in the dark web. And then we'll move on to the subject. Sure, ma'am. Yeah, okay, yeah. The three main suspects were accused of founding and maintaining the site, as well as giving members advice on how to avoid arrest, the German police said. The German police have arrested 4 members of a gang suspected to be behind one of the world's biggest child abuse image websites, with more than 400,000 members worldwide, police and prosecutors said. A police operation involving regional and federal German officers raided 7 addresses across Germany and arrested 3 men accused of operating Boys Town, a platform for distributing indecent images and a video of children, the BKA. Germany's federal police agency said in a statement. Police also arrested 1 man in Paraguay who is due to be extradited to Frankfurt. The arrests took place in mid-April but were announced on Monday. The site is no longer in operation, the BKA statement said, adding that an unspecified number of related chat sites were also shut down. The arrested suspects, who in accordance with German law have not been named, were 40 to 64-year-old. The 3 suspects arrested in Germany are accused of founding it and maintaining the site, as well as giving members advice on how to avoid arrest. One of them, a 64-year-old from Hamburg, is alleged to have personally uploaded more than 3,500 images. Furthermore, members of the platform received safety instructions from them for secure surfing in Boys Town in order to minimize the risk of discovery by law enforcement authorities, the BKA said. In 2019, friends, the federal prosecutors in US filed multiple charges against a 23-year-old South Korean man accused of running what they call the world's largest dark web child porn marketplace, with more than 200,000 unique videos. The dark web has long been associated with a range of criminality, including the sale of drugs and hacked private information. As most of you know, the dark web is part of the internet that isn't visible to search engines and requires the use of anonymizing browser called Tor to be accessed. And as you know, there are 3 layers when you surf the net: the surface web, the deep web, and the dark net. You can sign up and freely browse any large dark net marketplace. Researchers and law enforcers use it regularly. And what do they use it for? Well, they use it for buying credit card numbers, all manners of drugs, guns, counterfeit money, stolen subscription credentials, hacked Netflix accounts, and software that helps you to break into other people's computers. So when does the legal trouble start? It starts when you start buying things, shipping things, and distributing content. The darknet is significantly larger than the clear web. So Sanjat, today as we speak about, I think Sandeep has also joined us. Let me just add him. Yeah, great. Yeah. Hello, Sandeep. Thank you for joining us.
नमस्ते संजय जी, नमस्ते, जय हिंद जय भारत। नमस्ते संदीप जी। इंसिडेंटली आप भी एसपी हो और मैं भी एसपी हूँ। संदीप फोगट एसपी बनता है और संदीप पटनायक भी एसपी बनता है। इनिशियल का तो नाम हम ना ही ले तो अच्छा, क्योंकि एसपी ऐसे इंसान का भी नाम है जिससे लोग काफी नफरत भी करते हैं। Yeah, and see, Sanjat Pai, I wanted Sandeep also to join because Sandeep has also done some videos on the darknet, and he has given very clear, a very clear description of the whole process. You know how you enter the dark web and every procedure. I was just watching it, and I found it very interesting because you see, many of the people who are laymen, Sandeep, they don't know much about what it is. So he has given a very clear picture of this. So both of you can now take over. Sandeep, what I was talking about was in Germany, they just caught a web, the largest web of child pornography, and also in many other places. So we can start with either one of you. You can decide, how we can go ahead with it. Yeah, thank you, Sandeep ji. Thank you, Meena ma'am. See, first of all, for the viewers who are not aware of the dark net or dark web as it is called, I will give you a brief description what we are talking about. Yeah. Many people would not have heard about it at all, and many people would have heard about it and would not know about it at all, and many people would have heard about it and would be knowing something. कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, something they would be knowing about it, because something is going on. Yeah. Now, the point of discussing this topic is this is a huge topic which involves everyday life. It is not only cyberspace कि वहां पर कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं. It doesn't affect me as a common citizen. It is not like that. So for the audience who is here to listen about this has major ramifications in world events. Please understand that. And that is how Sandeep sir and me would be taking through you. So I know Sandeep sir is an expert on that, and I am basically a layman who does research, but I would be giving the points which I am 100% sure of. So to start off, see, internet works through a web of communication. Now, as Meena ma'am rightly said, there are 3 layers. One layer is where the open web, where we can see, we go to google.com or we go to any other search site, or we type a website such as youtube.com or something. So basically we go to a website and we visualize, or we see, or we hear, or we download data. That is how the surface internet works. Now below that, there are 2 underground levels. One level is deep web. Now deep web is a superset which contains dark web too. Now what is deep web? Deep web is there are data of banking multinationals, many corporations, power plant, nuclear plants, and there are many organizations, many big organizations which collect data and all. So that is not accessible to general public through general browser or general internet connection. Yeah. So that is called as deep web. So every bank data, credit card data, and bank even that there is secure. There is nothing. Most of the cases are nothing illegal about it. Yeah. Now deep down there is a underground mafia. If I talk in common man language, there is a mafia which operates through dark web. Now by the name itself, it seems very sinister, and believe me, it is far more sinister than the name it is. Sandeep sir would agree that the things which go on out there are far more sinister. So by the course of this presentation, naturally we'll go through that. So that would be my opening remarks. Over to you, Sandeep sir. थैंक यू सो मच सर। मत बोलिए सर आप मुझे बट मैं यही कहूंगा, देखो आपने बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दे दिया जो 3 तरीके के वेब्स होते हैं। अब मैं सीधा डायरेक्ट डार्क वेब पे उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि डार्क वेब असलियत में होती क्या है, उस पे क्या क्या चीजें, कुछ चीजें मीना मैम ने बताई हैं और संजय जी ने भी बता दी हैं। डार्क वेब क्या होता है? एक तरीके से जो बहुत ही सिक्योर होती है वैसे तो वो, और उसमें आप जाओगे वो सीधे इस ब्राउजर के जरिए भी नहीं जा सकते आप। उसके लिए आपको अलग से ब्राउजर में एक ब्राउजर होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है, जब मैंने सेशन किया था, जिस सेशन की आप बात कर रही हैं मीना जी, उसमें काफी लोगों ने बोला भी था कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज यू नो यंग किड्स आल्सो वॉच यूट्यूब, देन दे कैन गो इन देयर। लुक, दैट्स everybody's responsibility as a parents कि आपको उन्हें बताना है क्या देखना क्या नहीं देखना है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, there are a lot of thousands of millions of videos about this, but
a motive to make this video and Meena ma'am as well to aware public about it कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, how these people sit behind and do these kind of criminal things or drugs, mafia, child pornography and many other things. अब उसमें क्या होता है, ऑनियन एक बोलते हैं, ऑनियन लेयर्स होती हैं जिससे वो सिक्योर किया जाता है. वहां पे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप गूगल वगैरह पे जब अकाउंट बनाते हैं, यू हैव टू वेरीफाई दिस, बट when you go there, you just write down username you want to choose and you create a password. That's all. You don't need to verify because the verification process itself verify that कि आप कहाँ पे है, आपका IP एड्रेस, वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि हम एक नॉर्मल वेब में देखते हैं आमतौर पे. वहां पे इसीलिए उसको सिक्योर और बिल्कुल जो माफिया वगैरह के लोग होते हैं वो इसलिए यूज कर सकते हैं. यू कांट ट्रेस देम. अगर आप नॉर्मल बंदा चाहे, वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. व्हेन सेंट्रल एजेंसीज और जो FBI वगैरह जब अपने पे आएंगी तो वो उसको भी कर लेंगी ट्रेस. डजंट मैटर हाउ मेनी लेयर्स यू पुट इट आउट देयर. तो लेकिन आम लोगों के लिए जो वैसे भी लोग जाते हैं, उनके लिए वो ब्रेक करना आसान नहीं होता. अब उसके अंदर होता क्या है, एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जब इसके बारे में बात करना था, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये चीज उठी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की क्या डार्क वेब पे वीडियो लाइव हुई थी या फिर वहां पे अपलोड हुई थी, देन आई स्टार्टेड टू लुक इनटू इट. और मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल उस पे वो ब्राउजर भी इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने वहां जाके देखा भी, आफ्टर टर्निंग ऑन ऑल माय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की उससे, क्योंकि उस पे जाओगे आप, वहां पे आपके कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, आपका डाटा भी चोरी हो सकता है. सो इट्स वेरी सेंसिटिव, यू शुडंट बी गोइंग देयर. तो मैं वहां पे गया था सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एंड आई लिटरली रिकॉर्डेड द स्क्रीन. आई डोंट नो, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट कि मैं दिखा सकूं, लेकिन मुझे वो मिली नहीं है. लेकिन उसमें मैंने लिटरली दिखाया था कि किस तरीके से आप वहां पे जाइए, कैसे आप लॉग इन कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पे क्या क्या है जो आपने बताया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पेपाल अकाउंट हैक किए हुए. आपको जैसे कि अगर $100 का कार्ड भी लेना है तो आप उसके लिए पे कर सकते हैं $70, $60, समथिंग लाइक दिस. मतलब आपको फायदा ही मिलेगा. ये नहीं है कि वहां पे कोई आपको फ्री दे देगा. वहां पे भी वो पैसे लेते हैं, वो चोरी का माल होता है, इसलिए आपको कम में देंगे, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है. हालांकि वो लिखते हैं कि गारंटी है कि आप वापिस आ सकते हैं अगर काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप उससे कुछ पे करने की कोशिश करेंगे, यू कैन बी इन बिग ट्रबल एज वेल. अब वो काम कैसे करती हैं, वहां पे काम होता है क्रिप्टो करेंसी से. आप अपने कार्ड से पेमेंट नहीं करोगे, आप उसमें पे करोगे क्रिप्टो करेंसी से. क्रिप्टो करेंसी सबके पास नहीं होती. इंडिया में भी बैन, आई थिंक, आई डोंट नो अभी भी बैन है या नहीं है, लेकिन वो बैन कर दी गई थी. हालांकि अमिताभ बच्चन जैसों ने भी काफी क्रिप्टो करेंसी, वो बिटकॉइन खरीद रखे थे, जो उन्होंने 10-12 लाख में खरीदे थे, अब करोड़ों में हो गए हैं वो. और अभी तो फिर से वापस छलांग लगा दी है, काफी ऊपर चला गया है. तो आई थिंक अमिताभ बच्चन जी को काफी टाइम तक काम करने की जरूरत है नहीं. बट आई थिंक कुछ वो एक्चुअली उनका एक पोस्ट भी आया था, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि normally I used to get a lot of comments on my Twitter post. Now I'm not getting posts. Obviously he should know why he's not getting these comments, but anyway, let's don't go into a different topic. But definitely कुछ लोगों ने, चाहे वो बॉलीवुड से हो या किसी में भी हो, and I'm trying to convey this as much as in Hindi, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे भी कहा था कि प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल. तो वो क्या होता है, वहां पे आप लोग जाएंगे ना, ये पेपाल से, और जैसे कि बताया क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें, जो चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी वो वहां पे मिल जाएगी. मीना जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस कोरोना काल के टाइम पे, और मेरी बात भी हुई थी, जो एक भाई आते हैं हमारे यहाँ पे और वो बहुत काफी रिसर्च करते हैं, मंजीत सिंह डागर, आपने सुना होगा मंजीत सिंह डागर. उन्होंने भी बताया था कि वहां पे इस टाइम पे ऑर्गन की जो डिमांड जो होती थी ना, वहां पे कम होती थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. वहां पे एकदम से ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं. एंड हाउ कम इतने एकदम से अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कई केसेस सामने आए हैं जिसमें बॉडी भी हैंडओवर नहीं की जाती है. कुछ छोटे मोटे हॉस्पिटल ऐसे, वहां पे उनके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं. तो ये डार्क वेब जो है, ये सिर्फ ये हॉस्पिटल या फिर छोटे मोटे गुंडों, इनके लिए नहीं है. जो बड़े बड़े डॉन हैं, बड़े बड़े डॉन में सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप लोग यूरोप में देखोगे, इटली में देखोगे, जर्मनी में देखोगे, ये जो दाऊद वाऊद आप देखते हो, ये चिंदी चोर लगेंगे उनके सामने. ऐसे ऐसे डॉन बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे ऐसे माफिया बैठे हुए हैं. तो वो इतना बड़ा
उनका सिंडिकेट है, ऐसा चलता है। आप वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं आप लोगों को कि आप लोग वहां पे जाएं, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, इतना बड़ा बिजनेस है ये, मिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं कितने बड़े उसमें चलता है। और क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट होती है ना, यू कांट इवन ट्रेस क्रिप्टो करेंसी, इट इज अ डिजिटल करेंसी। मैंने भी वहां पे कुछ किया था, वो जो गए सो गए, बट मैं उसमें बिल्कुल नहीं करता हूँ, अब 2 साल हो गए, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ उसमें। बट इट इज वेरी डेंजरस, इट फ्लक्चुएट अलॉट। उसके अलावा आप अपना फंड वंड जो भी यहाँ पे इंडिया में चलता है उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी ना किसी को तो फायदा होता है। मेरे ऑफिस में भी कई लोगों ने जॉब छोड़ दी उसके चक्कर में, लेकिन फिर वो डाउन चला गया, वो फिर घर पे ही बैठ गए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड दिस डार्क वेब, इनका बहुत ही यू नो गहरा रिश्ता है। और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें ही होती हैं। और जो बात कह रहे हैं ना आपकी, उसमें डार्क वेब की, जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बिकॉज See, Sandeep, मैंने Sandeep, I'll just interrupt you here. Sure, See, sure. one point let me just make. See, the most frightening aspect of the, the dark web, of course, is the red room, where live murder and torture Yes. of an individual can be viewed and paid for. These are private viewings by terrorist groups. They do it for torture, torturing people for payment in Bitcoin. They are usually watched by sick people or those who seek revenge. And absolutely, that's how they get their fund as well. Those terrorist organization, वो वहां से फंड कैसे जुटाती है? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं उनको फंड देने के लिए, बड़े बड़े लोग बैठे हैं बॉलीवुड से और लोगों से भी, लेकिन ये एक यहाँ से बहुत मोटी कमाई उनको मिलती है, जो ये क्रिप्टो करेंसी में डील होते हैं। और इस तरीके से रेड रूम, डेफिनेटली देयर आर अदर डिफरेंट रूम्स एज वेल। और मैंने एक वहां पे वीडियो का दिखाया भी था, वो इट वाजंट अवेलेबल, बट आई कुड शो टू द पीपल कि वहां पे एक बंदा था, पता नहीं कहाँ का था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर ही वाज वेयरिंग येलो हुडी। उसके भी मर्डर की जो एक वीडियो थी वो भी वहां पे थी। सो इट इज ट्रू कि वहां पे ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं इट्स ओनली रूमर्स, इट हैपेंड देयर। आप लोग उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जब टेररिस्ट वो अमेरिकन पत्रकार को वहां पे बिठा के उसको मार के उसकी सीडी बेच सकते हैं। सो दैट्स वेरी लिटिल थिंग फॉर देम, क्योंकि उनको पता है वहां पे अंदर आएंगे नहीं, कहां से किस बंदे से अपलोड करवाई है, कैसे करवाई है। इट्स वेरी वेरी हॉरिबल एंड डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी स्केरी। तो अब मैं जाता हूँ संजय जी के पास, अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं बोलना शुरू कर दिया, मैं 1 घंटे के ऊपर इस पे बोल सकता हूँ कि इट्स अ वेरी 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 डेंजरस, और एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। Sure. See, I would मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा। I would speak both in English and Hindi, so all the speakers can make it out. See, अगर हम लोग इसकी उत्पत्ति पे जाते हैं, ठीक है, तो पहले चलते उत्पत्ति कैसा है। मैं जो नॉर्मली हूँ, मैं हमेशा होलिस्टिक पिक्चर देखता हूँ कि इंडिविजुअल एक्शंस क्या है, वो तो दूसरी बात है, वो तो होती रहती है। लेकिन अगर आप उत्पत्ति और होलिस्टिक पिक्चर, अगर पूरा आपको चित्र समझ में आए, तो आप आगे क्या होगा इसको समझ सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है जान सकते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति है, द ओरिजिन ऑफ दिस डार्क नेट इज बेसिकली एट्रिब्यूटेड टू अमेरिकन नेवी, राइट? Now, where have we heard that Americans were involved in internet? Basically, the invention of internet is by American Army only. That was called as ARPANET. So the origin of internet and darknet both are attributed to American defense. Now, let me logically go to why. होता क्या है कि this is a fact that US Army or FBI or federal agents were involved in drug trafficking, human trafficking, and money laundering across the world, in South America, in Gulf parts. The reason being they want to change the politics, they want to give money to the terrorists and social upstrife या NGO वगैरह करके उससे पैसे घुसाते हैं, trafficking करते हैं. So there are various reasons. So the objective of US Army or US government or US agencies is building up networks where they can smuggle in drugs, pornography, or any other thing which is banned in common human knowledge. They can trade in that and they can make money, number one, and they can have power over people. The policy makers, the ministers, the prime ministers, the presidents of the countries, they can have power over them. Now that is the broader sense. Now coming to जैसे हम लोग सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का बात कर रहे थे. So although I have not seen the video,
it is highly probable that it might have landed there because there would be a link. I will tell you how the link establishes with Bollywood. See, traditionally, Bollywood was always known to be a hoarder of black money, where money from outside came into India, और वो मूवीज में डालते थे माफिया लोग, ठीक है, और मूवी में वो लोग टर्न आउट होके वाइट करके, उसका मैकेनिज्म इज वेरी वेरी सिंपल. Basically, I have 1 crore of black money with me outside of India. I pay someone in Dubai 1 crore of rupee. Through Hawala transaction, that 1 crore of rupee minus commission would be handed over to a producer here, say Mr. X. That producer would take that X minus Y amount, that is minus commission, and invest in some movie. Now, when he invests in some movie, what is the trick part is, see, movie is one place where the money comes directly from the public. So there is no trail of transaction. So मैं कोई मूवी थिएटर पे लगा दिया, मूवी चला नहीं चला, तो हम लोग जो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ का मूवी देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सब फ्रॉड है. कोई जाता नहीं, इन लोगों का मूवी देखने के लिए इतना लोग कोई जाते नहीं है. और कोई बुढ़ा 65 साल का बैठ के रोमांसिंग कर रहा है, नो वन गोस टू थिएटर टू मूवी, जितने जाते हैं उससे ज्यादा दे शो के मूवी आया है. सो दे मेक इट 300-400 crores and they get this money, pay tax on it, and they make it white. Now this is going on, and this is going on. Now, one thing which has attached itself to that is Bitcoin. Now, what is Bitcoin or cryptocurrency? See, no one knows what is the origin of Bitcoin or cryptocurrency or who owns those coins. Basically, those people जिसको नहीं मालूम है, मैं बोल दूं, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया करेंसी है, यूएस में यूएस डॉलर है, तो दुनिया भर में आजकल बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, और कितने देश में भी ये लोग मानने लगे हैं कि इंटरनेट में एक करेंसी मिलती है रुपए के जैसा, जिसको बिटकॉइन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, उसका एक ट्रेड नेम है बिटकॉइन. तो कोई भी बिटकॉइन दे सकता है, ले सकता है. बिटकॉइन कैसे मिलेगा आदमी को? आदमी जो है पैसा देके, इंडियन रुपी हो, यूएस डॉलर हो, पैसा देके वो बिटकॉइन परचेज कर सकता है. मिस्ट्री ये है कि बिटकॉइन कौन ओन करता है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है. ठीक है, तो आते हैं हाउ टू कनेक्ट दिस बिटकॉइन टू आवर बॉलीवुड. सो नेचुरली व्हेन देयर वाज अ हवाला, देयर वाज मनी, एवरीथिंग. सो बिटकॉइन इज वन थिंग व्हिच इज गेनिंग इन एप्रिशिएशन. मतलब आज अगर मैं 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, तो उतने 100 रुपए का वैल्यू सोने के जैसा कल जो है 200 रुपए बन जा रहा है. तो मेरा बैठे बैठे मुनाफा हो रहा है. इसलिए मिडिल क्लास फैमिली बहुत लोग उसमें घुसे हुए हैं. लेकिन आई विल आल्सो एडवाइस, दैट इज प्योर गैम्बलिंग. नेचर का रूल है, जहां पर ग्रीड और गैम्बलिंग घुसा, वहां पर लॉस होके निकलना है. जो get out of it, please get out. Don't be greedy. Only the greedy people suffer. Our Indian system is very very clear about that. Greedy people suffer. So please get out. Now coming to Bitcoin and Bollywood. Now, if Hawala is one where it can be traced, because Hawala channel is very old, although because of corruption they are not getting old. But Bitcoin is virtually impossible to trace because the technological level which they go into hiding this transaction is very very high. और बाहर कोई अकाउंट में कहीं पर कोई बिटकॉइन रखेगा, जो संदीप जी बोले, ओनली द बिटकॉइन ओनर नोज वेयर इट इज स्टोर्ड विद अ पासवर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट ओनर, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन गेट होल्ड ऑफ दैट बिटकॉइन. दैट इज हाउ द सिस्टम इज मेड. Now coming to this Bollywood Sushant Singh Rajput or Red Room, and Red Room जैसे बोल रहे थे, I would make the Sushant Singh Rajput video as part of that. Yeah, Sanjat here. I will just make a small interruption. Please. Sanjat, see, when you remember when the Prime Minister came out with demonetization, okay, why did he come with demonetization? Because he wanted to remove certain notes, okay, because there was a lot of money laundering happening. Okay, systematically, this is something we have to praise our Prime Minister for, is that he made it digital currency. Now, every time I don't have to look at my bag if I need to pay some money. I have my card, okay, and all the transactions can be checked by anybody. So he has, at least here is a Prime Minister who has brought in transparency, in what are the dealings. And this is exactly the opposite when you say in Bitcoins, so that nothing can be shown. Everything will be hidden. So the way, dharma and adharma work. Yep. Please continue, Sanjat. Yeah. So coming to this, so Bollywood might be involved, and please remember, Sushant, as far as I have researched, Sushant was very intelligent. He was working on this AI part also. Yeah. So somewhere I think he also knew about this technology, and somewhere he would be working on cryptocurrency or blockchain or AI. Those are all linked actually, and in today's world, those are all linked. So he might be using those technology, and I think that might give an angle of international dark web mafia getting into this. I am not sure, but yes, there is a probability. We cannot deny that there is a probability. Now talking about red rooms.
Now, what happens in red rooms is basically, as you said, one is hostage situation where kidnappers would kidnap, number Yeah. one, and torture and ask for ransom. And number two, see, humanity perversion of viewing porn or pedophilia is deep ingrained. People go to many lengths to view this. So a common person might not be able to gauge the pervertness which goes in. But especially if you see the Europe and America, where relatively they are better off materially, financially speaking, they are very much. We can find traces of pedophilia, murders, and people spending on that, because if you see the number of serial killers which are found in Europe or America is very, very high. There's a different reason to that. We can have a long debate on that also. Serial killers is one topic which I am also interested. We can take on that some other day. Absolutely. So so those types of things go on internet, and it is very, very money on earning. After Sandeep ji comes in, I would give examples of two marketplaces in deep web, how big it was and how it was taken down, and the intricacies how it goes on. Yeah, Sandeep ji, please. Yeah. Sanjat, just one question. What the viewers is asking is that is it connected with the Illuminati? Yes, I would think so, because in my opinion, there is nothing in this world which can be that largely operated without any Illuminati sanction. Yeah. Yes. Yes, Sandeep. Absolutely, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, definitely it's connected to those Illuminati. और आपको पता है कि Illuminati में यहाँ पे कौन है जो उसका elite member है बॉलीवुड में, है ना? तो आपको पता ही है कौन नवाब है बॉलीवुड में इंडस्ट्री में, तो वो एलाइट मेंबर है और काफी लोग एंट्री के लिए। अच्छा, देयर वाज अ वन इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच समबडी सेड कि अगर आपको वहां का मेंबर बनना है तो यू नो देयर इज अ नंबर एंड समबडी कैन कॉल। I didn't even try, I didn't even respond to that message, but a lot of people doing this, they don't even know what is Illuminati. For them it's, you know, very fancy, or you know, it must be something exciting, but they don't know once they get into it, what's going to happen. Same like when people try to get into Bollywood and then bas ek chance mil jaye, and when the casting couch happen, and then people like, you know, Kangana Ranaut, she has already expressed ki वो कहां से निकल के आई है, उसको भी क्या साबित करने की कोशिश की गई थी when she was too much into these, you know, drugs and stuff, she admitted it. ठीक है, तो डार्क वेब पे जब हम वापस जाते हैं, एंड डार्क रेड रूम एज संजीव जी मेंशन, डेफिनेटली देखो जो वहां पे किडनैपिंग हो गई, मर्डर हो गया, मर्डर की चीजें तो आप लोग अभी फिलहाल बंगाल में भी देख रहे हैं। किसी ने मेरे पास वीडियो भेजी थी, ऐसे सर रख के तलवार से काट रहे हैं। तो इफ दे कैन शो दीज काइंड ऑफ वीडियोस डार्क वेब पे, द ओनली बेनिफिट दे गेट इज मनी, एंड व्हाई दे, क्यों उसको फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो इसका पैसों का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? तो डेफिनेटली दे डू दैट देयर। और सुशांत सिंह राजपूत के उसमें, यस आई एडमिटेड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे जो ज्यादा चीज जो लगी थी वहां पे कि आई डोंट थिंक कि सुशांत सिंह राजपूत का, आई एम नॉट 100% कन्विंस, आई एम लाइक इन 60-40 कि 60% यस हो सकती है, 40% नो, क्योंकि जिस हिसाब से जो चीजें हुई थी ना, ऑल ऑफ ए सडन दिशा सालियान ने कॉल की थी और सुशांत सिंह राजपूत को, और फिर एकदम से ऐसा दिखाया गया होगा बॉलीवुड एक्टर का, क्योंकि यू नो ही इज ए नॉन फेस। तो अगर जो वहां पे वो चीजें दिखाते होंगे, वो ऐसे दिखाते होंगे किसी को भी पकड़ के, यू नो, मार डाला, पता नहीं कौन से देश में कौन किसको जानता होगा, नहीं जानता होगा, बट सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की अदर मूवीज, बट डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट MS धोनी, जो जिसकी वजह से MS धोनी छिछोरे, बट MS धोनी वाज द बिगेस्ट वन। तो वहां पे जानते होंगे व्हाई दे विल टेक चांस ऑफ, यू नो, शोइंग हिज मर्डर देयर, क्योंकि वो तो इस हिसाब से चलते हैं ना, अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली है। वी नो मोडस ऑपरेंडी एक ही है, और भी लोगों को इन्होंने बॉलीवुड में पहले भी इन्होंने मौत के घाट उतारा है, उसको भी इन्होंने सुसाइड साबित कर दिया है। अगर इनको दिखाना ही होगा तो फिर तो दिशा सालियान का भी इन्होंने कुछ किया होगा। बट नो, आई डोंट थिंक कि सुशांत सिंह राजपूत की, आई एम नॉट दैट कन्विंस 60% ऑन दैट साइड की हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है और सीबीआई ने अगर रिकवर वगैरह कर ली होगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गए भाड़ में, वो सीधा सीधा वहां पे दिख जाएगा कौन लोग थे, किसने मारा है,
कैसे मारा है, सीधी सीधी चीजें सामने आ जाएंगी, वो अब तक सामने आ चुकी होती है। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, और उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एज फार एज आई नो। बट डार्क वेब की जब हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं, इवन पॉलिटिशियंस Yes. दे नो। डीमोनेटाइजेशन की जो आपने बात की है, इट्स नॉट जस्ट कि वो उनको इस तरीके का जो पैसा ये लोग कमाते थे, वो जो नकली नोट थे वो, नॉट जस्ट टू ब्रिंग द डिजिटल करेंसी। मैं सच बताऊं ना, मुझे याद भी नहीं है कितना टाइम हो गया, मेरे पास एक नोट भी होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैंने कैश रखा हो। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, इवन इफ आई स्पेंड $2 समवेयर, टैप इट। कई बार चाइनीज शॉप पे जाते हैं, वो बोलते हैं ऑन मैक्सिमम मिनिमम $10, क्योंकि उनको वो पे भी करना पड़ता है। बट ओवरऑल इट्स ऑल डिजिटल, एवरीथिंग डिजिटल। ये जो लोग इस चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं ना, ये लेफ्टीज, क्योंकि अभी वो सरकार में नहीं है और किसी तरीके से वो पैसा नहीं बना सकते, इन्हीं चीजों से वो पैसा बना सकते हैं। हवाला का जिक्र किया संजय जी ने, डेफिनेटली हवाला के जरिए जो बॉलीवुड की तरफ से वहां पे पैसा आता है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन डेफिनेटली वो इस तरीके से ही वाइट करते हैं। ऑल्सो वहां से जो अर्निंग होगी ना, जो दर्शकों से, ऑडियंस से अर्निंग होगी, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एनजीओ नाम की एक सुविधा है, उसका ये खूब फायदा उठाते हैं। और आपको पता ही होगा 2007 में जब ब्लैक बक और फिर उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दी थी, तो किसी ने बहुत ही इनको सुझाव दिया होगा सलमान खान को, एनजीओ नाम की एक चीज होती है, उसको शुरू कर लो, बाकी चीजें हम लोग अपने आप देख लेंगे, 10-20 लाख रुपए हमें महीने की सैलरी देना, आपके करोड़ों रुपए हम बचवा देंगे। क्योंकि किसी के पास हिसाब है ये लोग कितने पैसे देते हैं, कितना टैक्स भरते हैं। ये कहते हैं कि अपने मूवी का ज्यादातर हिस्सा ये उधर एनजीओ में दे देते हैं। एनजीओ के ईडी को वहां पे रेड मारनी चाहिए। एवरी सिंगल एनजीओ रन बाय एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसकी जांच करो, देखो। अरे भैया, इनके तो घर बिक जाएंगे। ये तो मैं तो कह रहा हूँ, ये कपड़े तो इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, सब कुछ बिक जाएगा अगर उस पे आ गए तो। घर में ये इनको जो जी खाना पहुंचा रहे हैं ना आजकल झूठ मूठ का, उन्हीं के साथ कहेंगे भैया खाना है जो हमें बता देना, हम सो रहे हैं। ऐसी हालत हो जाएगी इन लोगों की। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग नेक्सस। आपके पास जाता हूँ मीना जी फिर से। हाँ जी, I want to ask both of you one question. Now, हाँ suppose जी, if Sushant's death was televised through dark web, okay, can it be stored? Can it be stored for lawmakers to retrieve it if they desire? the only possibility is if somebody is recording the screen, या मोबाइल में कर रहा है या फिर अपने मॉनिटर में, लैपटॉप में, जहां पे भी देख रहा है, बिकॉज दीज आर द लाइव वंस। आई डोंट थिंक दे रिकॉर्ड, जो बना रहा है उसको, जो उस टाइम पे कर रहा है, डेफिनेटली दे कुड हैव बीन रिकॉर्डेड, बट आई डोंट थिंक दे वो वेब पे डालेंगे, क्योंकि इट इज डेंजरस। वो बेशक वहां पे लेयर्स होती हैं, दे वोंट टेक रिस्क ऑफ पुटिंग इट आउट देयर। उनको बेचनी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं किसी को बेचनी है। अगर किसी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होगा, इसको मारना है उसको मारना है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने देख ही लिया होगा, टाइम सेट कर दिया होगा, इतने बजे भैया, इतने बजे हम टेलीकास्ट करने वाले, आप लोग बैठ के देख लेना। तो आई डोंट थिंक कि वो लोगों ने रिकॉर्ड की होगी, जिन लोगों ने देखी है वो। और वो जो रूम होता है ना, वो अगर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी अगर उन्होंने किया होगा, तो दे मस्ट हैव बीन ओनली स्पेसिफिक पीपल हु हैड एक्सेस। क्योंकि जो ये वेबसाइट भी बनती है ना, जहां पे आप लॉग इन करते हैं, वहां पे भी लिमिटेड नंबर्स होते हैं। कि जैसे कि एक वेबसाइट बना दी है वहां पे डार्क वेब पे, यहाँ पे 1000 यूजर्स आ सकते हैं या 10,000 यूजर्स आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लॉग इन करने की, अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपको बता देंगे कि दिस इज फुल, या जो भी वेबसाइट का जो भी मैसेज आता है। तो उन्होंने वो क्रिएट किया होगा कि इसमें सिर्फ 10 मेंबर आ सकते हैं। 10 मेंबर में वो भी जो सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते थे या जो चाहते थे कि उसको एलिमिनेट किया जाए। तो इस तरीके के हो गए। आई डोंट थिंक कि और किसी के पास वो होगी। संजय जी आप बताइए। Yeah. Why I'm asking you, Sandeep and Sajjad, is that there was one post, a Twitter post, where they said, like a piece of poetry, So when they had Sushant in their hands, first they said, like in MS Dhoni, cricketer, break his leg. His leg was broken. Okay. So, and they went on, kept on saying things like that. And finally they said, now let us choke him with his own dog's belt. मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, नाउ आई नो वी हैव टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज अ थ्योरी।
अब मुझे पता है कि किसी और का मर्डर हुआ, फॉर एग्जांपल गुलशन कुमार, अब मैं कह दूं गुलशन कुमार के भी डार्क वेब का वो टेलीकास्ट हुआ है, एंड आई विल टेल यू हाउ। वहां से हमने देखा कि एक बंदा उधर से आ रहा था, 4 कैमरे थे हमारे पास, एक उधर से आया, 2 उधर से आए, उन्होंने इस तरीके से गोली मारी। एवरीबडी नो अबाउट दिस। अब यहाँ पे एक एक बच्चे को पता है, एवरी एसएसआरियन नोज दीज थिंग्स। अगर मैं यहाँ पे थ्योरी बनानी शुरू कर दूं कि लोग मुझे कहीं इसको सब चीजें पता है, इट इज ऑल थ्योरी। इफ देयर इज एनी वीडियो, नो वन हैज सीन इट। संजय जी, see जो संदीप जी बोल रहे हैं, see the chance of it being a decoy is very very high। होता क्या है कि ये सब केस में, हाई प्रोफाइल क्राइम्स में जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो लोग 4-5 थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा छोड़ देते हैं मार्केट में, जो कि बहुत ही उटपटांग लगेगा, लेकिन लोगों को मजा आएगा और ये सब बोल के लोग जो है उस पर नाचेंगे। और कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, दे वुड डिस्क्रेडिट बाय गिविंग आउट के यार देखो दिस गाइस हैव caught onto something lies, so these guys are in any case mad guys, so don't listen to them। These tactics is very highly used in all these high profile cases where high profile criminals are included। So there is a very very good chance that this is a decoy to discredit the people who are genuinely concerned, honestly उसके पीछे भाग जाते हैं। फिर बाद में people say कि no this is a cock and bull story, so these guys don't know have any IQ at all, so let us discount them। now coming back to this dark web, I will start again। See, dark web is not all bad as we are speaking। See, it has its own purpose। अगर if I come back a little bit out of this bad thing, what has happened is dark web का use और एक जगह पे भी है, जहाँ पर जर्नलिस्ट या जो लोग कंट्रीज जहाँ पर बहुत कंट्रोल बहुत ज्यादा है, where people cannot talk about, तो usually journalists store their data on dark web so that the government cannot recover the data and see what they're investigating। So that is how it is used। Now अब जर्नलिस्ट जब करता है तो उसको लिए पेमेंट भी कहीं से आएगा, अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया तो वो व्हाइट में नहीं होगा, तो फॉर गुड पर्पसेस आल्सो दिस माइट बी यूज्ड। आई विल टेल यू व्हाई इट इज कंसिडर्ड डार्क वेब केम इनटू पिक्चर और लोग इतना हैक करते हैं या जाते हैं, कि डार्क वेब इज बेसिकली मैनेज्ड बाय people who have IT inclination, their IQ level or their intelligence is higher than a regular human being। तो वहां पर क्या होता है कि because and psychologically जो लोग intelligent होते हैं, they always go out for a stimulation, उनको they need something challenging। ठीक है। So this danger of police or government agencies catching up with them is something is like a drug junkie। So they, even rich people, and it's not only for money, even rich technocrats who are involved into this, they go into that, they make marketplaces। if people would not have heard the first हिंदी में भी बात, अच्छा हिंदी में बात बोलता हूँ। देखिए होता क्या है कि जो पहला डार्क वेब का फर्स्ट जो मार्केट प्लेस बोलते हैं हम लोग, जो फेमस था, वो सिल्क रूट करके एक साइट था। तो सिल्क रूट जो साइट था, उस पे बेसिकली आपका ड्रग्स वगैरह मिलता था, या संदीप जी बोले क्रेडिट कार्ड मिलता था, या आपका करेंसी मिलता है सस्ते में, या फिर पासपोर्ट मिलता है अलग कंट्रीज का। ठीक है, वो लोग फ्रॉड बना, और आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। तो ये ऑन हुआ था, लेकिन वो अराउंड 200 मिलियन के आसपास का पर एनुअल उसका टर्नओवर था। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि सिल्क रूट वाला पकड़ा गया, ही इज इन स्टिल इन जेल, यूएस में है, अभी जेल में भी है, एंड फॉर लाइफ। Now there was another market which came up actually, which boomed during Bitcoin boom, और उसका boom एक साथ ही था, which was alpha market। अगर आप लोग जानते नहीं, they can go for alpha market। Now alpha market was 200 times bigger than this Silk Route, and the business which was they were doing were into billions and billions of dollars, US dollars। ठीक है, तो huge money, ड्रग्स मिलता था, वेपन्स, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग देयर। बेसिकली होता क्या है कि ये लोग सेटअप करते हैं अपना सर्वर, उस पे कोई भी, जैसे अमेज़न में कोई भी वेंडर जाके बेच सकता है, सब लोग वहां पर जाके अपना सामान बेच सकते हैं। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी लोग बोलते हैं कि वहां पर है कि पीपल कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दैट इज आल्सो वन पार्ट, क्योंकि वहां कोई ट्रेसेबल नहीं है और पेमेंट होगा बिटकॉइन में, तो किसी को नहीं मालूम किसी को पैसा आया किसी का पैसा गया। एंड ये सब तब बढ़ा जब, क्योंकि अगर आप देखोगे थाईलैंड में, सेंटर ऑफ ऑल दिस वाज थाईलैंड। थाईलैंड डिड नॉट हैव ए लॉ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यूरोप का है, थाईलैंड डिड नॉट हैव ए लॉ ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिंग इंटरनेट डेटा ऑफ इट्स सिटीजंस। सो दैट इज व्हाई ये अल्फा मार्केट का जो अलेक्जेंडर कैश करके था, ठीक है, तो वो थाईलैंड से ऑपरेट करता था। वो थाई लेडी को भी मैरी किया था। उसका जो आई वाज सीइंग द पुलिस रिपोर्ट,
he was using $30,000-40,000 on one of his dinners. उसका जो रेगुलर डिनर होता है 30,000-40,000 डिनर पे स्पेंड करता था. 30,000-40,000 डिनर मतलब मेरे हिसाब से कितना 3-4 लाख का कम से कम होगा एक डिनर का. तो उतना पैसा था उसके पास. And his IQ was 142. तो एवरेज IQ जो माना जाता है गुड बेटर देन अदर्स इज अराउंड 130. His IQ was 142. He was very intelligent. वो कैनेडियन सिटीजन था. तो the most of the people who are managing this business are highly technological intellectuals. More money is naturally there. Once they earn money, they start enjoying it. But I would say money के अलावा there is a criminal aspect which gives them a risk factor. तो ये human का nature है. जो लोग bungee jumping करते हैं या cliff jumping, they do that. Yes. Then I think I can pitch in later also if someone wants to say something. No, it's okay. Great. Keep Yeah. going. या ठीक है. तो अल्फा मार्केट का जो अलेक्जेंडर कैश था, तो इसको एज मीना वाज सेइंग 10 countries and Interpol came together. Who are those countries? USA, UK, Germany, Cambodia, so and Interpol and Thailand police. So 10 police of 10 countries बहुत दिन रिसर्च करके डिटेक्टिव वर्क करके उसको पकड़े. आई विल टेल यू हाउ आल्सो दे कॉट इट. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दोज हु वांट टू गो इनटू दैट. प्लीज डोंट गो इनटू दैट. सी व्हाट हैपेंस इज जो लोग इंटरनेट में काम करते हैं, एवरीवन स्टार्ट्स विद सम आईडी और समथिंग अदर. Now this Alpha marketplace was working like, see, I am a vendor, I go to Alpha Market, I register myself, so I would get an email, first registration email. Now this email was coming from a alpha02 pimp91 at hotmail.com ID. Now after much research, these agencies found out this ID was made in somewhere in 1992 by this Alexander Keza guy when he never thought about this dark web, which was not even invented then. So जैसा होता है ना, पहले जाके हम लोग कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं फालतू का, ये सब चैटिंग करने के लिए, ये के लिए, उसके लिए. तो he created some ID like that and somehow after 10-12 years remembered तो वैसा एक ID है मेरा, I can use that in Alpha Market. तो छोटा करके वो स्टार्ट किया था. बस छोटा क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन बेचेगा और आपका आईडी कार्ड बेचेगा या फिर हैकिंग का टूल बेचेगा. ठीक है. लेकिन वो बड़ा होते होते उसमें ड्रग्स, गन्स और क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत कुछ घुस गया. वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का बिजनेस बन गया एंड वो आईडी को कंटिन्यू करता रहा. वो सोचा कि कोई मेरे को कभी पकड़ेगा नहीं. तो these guys actually caught hold of him through that ID because वो हॉटमेल में कहीं पर 91-92 में वो आईडी में कहीं पर लॉगिन करके चैट किया था. This is how he got caught and incidentally उसके अरेस्ट के बाद apparently he got life sentence without parole और 1 साल के अंदर apparently officially he committed suicide in the jail. अब सुसाइड किया या मार दिया गया या फिर उसको विटनेस बना के उसको विटनेस प्रोटेक्शन में भेज दिया गया, that is a doubtful issue. In my case, he would be witness protection में चला गया होगा after saying that, declaring that he is dead. So this is how the story is. So it might seem very very good. Money might come. The objective are both money and thrill of it. But the end भगवान ensure करता है कि they meet. Yeah, that's all. संदीप जी, yeah. नहीं बिल्कुल कह रहे हैं. इसमें उनका क्रिमिनल माइंड तो होता ही है. कुछ लोग एंजॉय करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बॉलीवुड में हम देखें जैसे महेश भट्ट है या और कोई भी लोग है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या करना है इनको पैसा, एज देखो. तो ऐसे जब पैसे की भूख खत्म हो जाती है ना कुछ लोगों में, तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें. तो लोगों को टीज करने में मजा आता है ऐसे लोगों को, चाहे वो उसको प्रताड़ना दे, चाहे उसको मारे या कुछ भी करे, तो ऐसे लोगों को मजा आता है और इसके लिए भी वो करते हैं. कुछ तो जो अपने कुछ भी दुश्मनी निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम दे दिया. लेकिन अभी जो इस पे ज्यादातर हो रहा है ना, वो ऐसे लोग, अमीर लोग, चाहे भारत में ही नहीं कह रहा मैं, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो साइकोपैथ होते हैं, इस तरीके के लोग ज्यादा इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. और जैसा कि आपने बताया वो सिल्क रोड वाली बिल्कुल सही है. और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसमें एक और किसी ने सिल्क रोड करके ही कुछ, सिल्क रोड 2 करके कुछ और भी खोल दिया है. हालांकि वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, मैंने वो दिखाया भी था लोगों को. तो वो सिल्क रोड 2 करके ऐसा कुछ था, वो इन्होंने खोल लिया है दोबारा. तो इस तरीके की चीजें आती रहती है जो नॉर्मल अगर आप खोलेंगे ना, और बाकी की चीजें उसमें आपको ये सब नहीं दिखेंगे, गन वगैरह. उसमें क्या दिखेगा आपको, ड्रग्स वगैरह. अब लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ड्रग्स वगैरह खरीदते हैं तो जब वो ड्रग्स देने आएंगे तो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे. तो वो भी वो डिसाइड करते हैं. तो वो क्या करते हैं, या तो आपको वो पहले तो आपकी डिटेल सारी ले लेंगे कि एड्रेस वगैरह या क्या क्या चीजें ले ली है. अब वो
कई बार ये भी सुनने में आया है कि वो आपके लेटर बॉक्स में किसी तरीके से डाल जाएंगे। वो इतनी बारीकी से अगर एड्रेस भी दिया है तो वो सारी चीजें देखते हैं कि कहीं पे कैमरा तो नहीं है, क्या नहीं, या फिर किसी के हाथ भिजवा दिया। मान लो अगर भाई किसी ने ड्रग्स ले ली किसी से। हाँ जी, बोलिए बोलिए संजीत जी। ना आप पता लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आई हैव अ पॉइंट रिगार्डिंग करके कैसे होता है, आप बोलिए। ओके ओके ओके। तो जो यहाँ पे मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, जो जिसने मुझे बताया है, जो इसमें जैसे आपने बताया ना, कई लोग होते हैं बहुत शातिर। तो एक ऐसा शातिर मेरा दोस्त भी जिसको मैं जानता हूँ, जो बिटकॉइन, सिर्फ बिटकॉइन से उसने एक घर खरीद लिया है यहाँ पे, मतलब 4-5 करोड़ का। और अभी भी वो उसने सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू किया था, वो उसने पहले महीने में ही निकाल दिया। ऐसा जो जिन लोगों का दिमाग होता है वो करते रहते हैं। हमारे जैसे जाएंगे वहां पे $10,000 उसमें डाल दिए, एक महीने में वो जाके और फिर वहां पे रोते रहेंगे क्यों मैंने इसमें पैसे डाले। तो हम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो उसमें डालते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग्स की बात मैं बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, जैसे आपके उसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया, या फिर किसी के हाथ पे, अगर किसी ने $10,000 की ड्रग्स खरीदी है, वो छोटा सा पैकेट होगा, उसमें किसी को बोल दिया कि काफी ड्रगी वगैरह भी घूमते रहते हैं जिनके पास घर नहीं होता, खाने के लिए भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में। माइट डू यू हैव अ कॉइन, सिंगल एक $2 के लिए वो ऐसे खरीदते हैं। उनको बोला ये ले $100, तुझे क्या करना है, बस ये वहां पे डालना है। पुलिस उनको पकड़ ले, क्या पकड़ेगी, क्या कर लेगी, उनके पास से कुछ नहीं मिलना है। तो ऐसे लोगों से भी वो काम करवाते हैं, चाहे वो घर पे दिलवाना या कहीं पे दिलवाना हो। वो क्या करते हैं, वो बड़े ही शातिर होते हैं, डिटेल्स ले लेते हैं। अब तूने पैसे दे दिए, मुझे ये डिटेल्स चाहिए। ब्लैकमेलिंग भी होती है, यहां तक कि आपने देखा होगा कई बार अमेरिकन मूवीज में, वो आपका लैपटॉप कंप्यूटर हैक कर लेंगे और वहां से आपको आवाज आएगी, ये इसको अनलॉक करने के लिए इतने पैसे चाहिए। दिस इज रियल थिंग। वो लॉक कर देंगे आपका पूरा कंप्यूटर कि आपको $5,000 इस अकाउंट में डालने, 10,000। तो सिर्फ वहां पे बेचने और खरीदने की चीजें नहीं, उससे आपके कंप्यूटर में वायरस भी आते हैं, जैसे कई वेबसाइट पे आप लॉगिन भी करोगे। हाँ संजय जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, पहले आऊंगा डिलीवरी मेथड पे। आप जो सब बोले वो तो ठीक है, उसके साथ एक और बहुत इजी तरीका है जो ये लोग अपनाते हैं आज की डेट में। जो ऑनलाइन परचेज का जो डिलीवरी है, वो हर घर, हर फ्लैट में या हर गांव वगैरह में जा रहा है। अगर इंडिया से बाहर निकले तो बाहर ये बहुत प्रचलित है, ठीक है। लेकिन उसका जो स्कैनिंग मैकेनिज्म है वो उतना स्ट्रांग नहीं है आज तक। तो होता क्या है कि जैसे कोई फ्लावर वेस हो गया, या फिर कोई दूसरा आइटम हो गया, खिलौना हो गया, या फिर कोई भी नॉर्मल आइटम हो गया, तो उसपे ये लोग उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें ये लोग छुपा लेते हैं और छिपा के जो है इसको कोरियर में डाल देते हैं, ताकि वो नॉर्मल फ्लावर वेस किसी को मिला, या जिसको जो खरीदा है उसको मालूम है आया क्या है। लेकिन वो भी एक तरीका है जो प्रिवेंटिव यूज होता है, जो कि नॉर्मल लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या है कि उनका जो है टाई अप, जो जहाँ कोरियर का हब है वहां से टाई अप यूजुअली होता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ करप्ट रहेंगे, वो लोग उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे, ये ऑलरेडी चलता है। ये तो डार्क वेब अभी आया, लेकिन ड्रग्स जो पार्सल जो मिलना है लोगों को, ये नई बात नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है। तो चैनल तो है, तो उसके लिए हो रहा है। अभी आप सेकंड आप और कुछ बात कर रहे थे संदीप जी, शायद उस पर कुछ, चलिए मेरे को याद आएगा तो मैं बोल दूंगा आपको। सेकंड और कुछ पॉइंट बोल रहे थे जो मैं भूल गया, उस पर कुछ था रिमार्क्स। ओके, मीना जी के पास चलते। मीना जी कुछ कह रही थी शायद। Interesting. Other than outside this topic, Sandeep ji, I wanted to speak to you about something. Pithani. Interesting news has come that he is engaged. And the dates. You will see the dates as in 13th and 14th. Can you believe it? So people are very angry about it. Why? One thing is that, see, he's loose. Nobody has caught him till now or questioned him. Second is the dates. What is he trying to imply? See, all these things are so frightening that, I received a lot of comments regarding this. What is happening? Why isn't CBI working? So here, Sandeep ji, you just make few comments on that. Sure. I think a couple of days ago we discussed on our channel as well. क्या है सिद्धार्थ पिठानी, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि एक इंसान है, उसकी लाइफ है, चाहे वो, उसको पता है किसी को मरना है, तो मैं भैया शादी वादी भी कर लेता हूँ, अपना जो होगा देखी जाएगी, नहीं तो ये हो जाएगा, सीधा मैं घर जाऊंगा। एक चीज इसको आप इस तरीके से लेते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होना है, इसलिए आराम से शादी करके बैठा हुआ है। वो दूसरी चीज जो लोग सोचते हैं। डू यू इवन थिंक ए क्रिमिनल माइंड विल थिंक कि मैं किसी की जिंदगी खराब ना करूं, क्योंकि उससे किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी? अगर जिसमें इतनी क्षमता होती, जो इतना सोचता, वो गलत काम करेगा पहली बार में ही? बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तो वो पहली चीज जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं वो किसी की जिंदगी खराब करने की क्यों सोचेगा, उसको पता है उसको कुछ नहीं होगा, वो चीज तो बिल्कुल नकार दिया मैंने। बिल्कुल भी मैं कहूंगा लोग सोचे ही ना, क्योंकि एक क्रिमिनल माइंड होता है ना, वो किसी का भी भला नहीं सोचता। अगर फैमिली के ऊपर भी बात आती है ना, मैं पिठाने की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जिसका क्रिमिनल माइंड होगा ना वो अपने घर वालों को बेच के खा जाएगा जब उसे जरूरत लगेगी। तो ये चीज भूल जाओ। दूसरी चीज जो मैं मानता हूं, उसने जो भी चीजें सोची होगी, भैया शादी वादी करो, सीबीआई देखो, और केसेस में किसी में 7 साल में फैसला आ रहा है, किसी में 20 साल में आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। वहां पे जो भी लोग लॉयर्स वगैरह वो देख ही रहे हैं। एक तीसरी चीज भी है जो मैं हमेशा कहता हूं, जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर उसको सरकारी गवाह बना लिया गया होगा तो, कि ठीक है भैया तू अपना चीजें करता रहे, तूने ये चीजें रिकॉर्ड कर दी है अंडर दिस सेक्शन, वी विल टेक दिस इनटू द कोर्ट, और तुझे ये करनी है, बाकी हमें तुझे प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अभी तू बाहर जाएगा, तेरे से जो लोग भी पूछेंगे जिनके लिए काम किया है, उनको बोल देना कि जो आप लोगों ने बताया था मैंने वही बोला है। और इस तरीके से काम भी होता है। जो और फॉरेन कंट्रीज में भी जो ऐसी खुफिया जगहों पे काम करते हैं ना, दे पर्सनली सेंड मी मैसेज कि हम इधर इधर इस कंट्री में काम करते हैं, एंड दे एक्सप्रेस देयर व्यूज कि इस तरीके से भी काम होता है। सो आई नॉर्मली think about this in a third point of view, क्योंकि I try to think everything positive until you see a negative point in front of you. तब तक जब तक आपके सामने कोई चीज आएगी नहीं ऐसी, why do I have to think negative? Yes, you have to be very careful जब आप बात करते हैं या कुछ सोचते हैं, but जब तक चीज आपके सामने नेगेटिव नहीं आती आप क्यों सोचेंगे? That's what I think and that's what I've said to everyone. Do not feel negative anything about it. अगर सीबीआई को पता होगा कि अगर उसने किया है, वो सोच रहा होगा 20 साल में अगर 1 महीने बाद कर रहे होगे, वो अपने हनीमून पे गया होगा, वहीं से खींच के रगड़ के ले आएंगे। तो टेंशन मत लो आप लोग, बस पॉजिटिव सोचो। But my surprise, Sandeep, on a very light note, is that who has given their daughter to him? Yes, people ask this question and इसका मैं जवाब ये दूंगा। देखो, we don't know, क्या पता पहले से उनकी सगाई वगैरह हो रखी थी या जो भी हो रखा था। हालांकि किसी को पता चलता है कि हम जिससे शादी हम जिससे शादी करने वाले हैं उसका इन चीजों में नाम आ रहा है तो तोड़ देते हैं। बट व्हाट इफ ही हैज ऑलरेडी सेड कि आपको किसी को बताना नहीं है, हम 2 फैमिली जुड़ने वाले हैं, आई हैव टेस्टिफाइड ऑलरेडी, ये चीजें मुझे बोली गई हैं। या फिर अगर इस चीज को भी हटा दे, क्रिमिनल की साइड से भी अगर वो बोले भैया ये हमारा वकील है, इसने ये बोल दिया है, ये चीजें हम करेंगे और आप टेंशन मत लो क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, जिन लोगों ने किया वही फंसेंगे अगर फंसेंगे तो। इस तरीके से उनको एक तरीके से बहला फुसला लिया हो। तो ये दोनों चीजों के अलावा मुझे नहीं लगता तीसरी चीज होगी, या तो टेस्टिफाई करने वाली बात, या फिर अरे हमारे पास वकील वो है जो 10 लाख लेता है और 10 लाख से मैं एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देता, समथिंग लाइक दिस। एक और एंगल है, मैं ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सपोज आई एम फ्रॉम अ क्रिमिनल फैमिली, सो आई वुड मैरी माय डॉटर टू अ क्रिमिनल ओनली। सो एक्चुअली बीइंग अ क्रिमिनल क्वालिफाइज हिम टू बी अ क्रिमिनल। तो अगर मैं क्राइम फैमिली से आता हूँ, बड़ा माफिया हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं मेरे बेटी को वहीं पर देना चाहूंगा जो कोई और दूसरे क्रिमिनल माफिया के अंदर इन्वॉल्व हो। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका है करके, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट उसके लिए तो हीरे जैसा दामाद हो गया ना। So that is also one angle होगा मेरे हिसाब से। Sanjay, Shandat and Sandeep, see what surprises me, I'll tell you. See, there were some scenes which were shown on Z News where this Pithani is sitting with Riya and with Sushant, and they are playing the guitar and they're singing songs. Okay, in between they're smoking also weed. Okay, a friend who has been taught, trained by Sushant, just like all the, our friends. We have so many friends, right? We become so close, and finally, when he is killed, he cannot stand by him. He will join the criminal side because that benefits him. That itself shows, even nobody, not even God, can forgive him for that. Absolutely. I know. See, I'm looking at both sides. What you said is correct, Sanjay. See, mafia people prefer mafia in their families because they are safeguarded. That is correct, what you said. But, there's also a supreme force above us, who decides. For example, this Salman Khan's movie, okay? It was supposed to be released, on this date, on this date, on this date, on this date. Finally, what happened? He could not release it in the theater. He is a bhai. I mean, he should have made it possible. He should have brought the sun, the moon, and the stars, and said that, see, I'm having a theater Not opening. Anymore.
Yeah, but what did COVID do? COVID acted like God. COVID made sure that he would not release his film, and that was enough for the whole Bollywood ban boycott team to be happy. Don't think you can be a don, and do whatever you want. Maybe Sushant's soul is speaking, but Salman couldn't get his way. So that is something that has made people very happy. Yes, completely agree. And see, what has happened is, if you see, Sushant's death has created a paradigm shift in the way people see it Bollywood. Exactly. There is no doubt about that. The middle class people or the young boys and girls are actually not happy with the Bollywood stars, and they have seen through their hypocrisy, which matured people were talking about earlier, that Bollywood is corrupt and it is basically funded by mafia, and people should not idolize them. Yes, there are some still certain percentage of youth who naturally gravitate towards that, but by and large, it is known that it is the hill of BS actually, nothing else, and corrupt people are mafia is doing that, and their credibility is forever gone. Now they cannot come and lecture others about morality, and which is, see, if you see, earlier times we used to get many this Diwali guidelines of how to play Diwali, Holi, and those have stopped because people have started actually scolding them. Why are you giving all this gyan when your own moral story is not right? So somewhere that shift is there, and I think this life of Sushant has now, although wasted untimely, but I think that is what God's punishment to these guys are, natural karma. Yeah, Sandeep, going back to the dark web. Okay, now see, I think that the whole nexus is tuned all around the whole thing. See, it's not like a package. For example, on a birthday, I give you a gift. That is enough. No, the way the underworld works is that everybody's hand is in the other person's pocket. Okay, so I feel, I'm not, see, this is my opinion. I feel that whether it was Sushant Singh or whether it was Disha, the death was, viewed by certain people. Why I'm telling you, Sandeep, is because, see, you remember at around 5:30 morning, many people were saying that, see, he has committed suicide. Achha? So did they see it? Yeah, did they see it? So not only dinosaurs, some very big superstars as well. So did they see it? Okay. So now that your thought process works. They have seen something, or they know something. Okay. What have they seen, or what have they seen? Right up to the biggest superstar sitting somewhere far away, he also saw it. Is what they say. So what I feel is that they must have made profit in every way, whether it's Bitcoin, okay, whether it is money laundering, whether it's drug trafficking. So everything is connected, Sandeep. So I would say that, see, this is a very big possibility in not only Sushant Singh's case, the case of Disha, also the case of the minor girl, and maybe so many starlets, the television starlets, maybe so many cases. Because, see, when it becomes a pattern, then that means they are making some profit. Just by killing somebody, they're not going to make money. Yep, exactly. See? When something very pervert, something very, perverse, I would say, something very perverse is happening, where, the sick people in the world are being titillated by something. That is where you make your money. And that's where these Bitcoins come in, So this is just my, again, see, very subjective. So this is my viewpoint on that. Sanjay, you could also add to that. Yes, ma'am. As you rightly said, see, it is a web. It is not only one thing or one part, that one video or one transaction of money. So whoever goes into that goes into lifelong slavery. So it is, I would consider it as slavery. They might feel a bit of a rush of a power for 1 hour, 1.5 hours. Because not only dark web, even before the dark web also, many people know that there were certain rooms or certain torture cells where these elites used to congregate and used to have these perverse pleasures. So there is another theory why they do that. Actually, there is a particular objective apart from the simple joy. See, the theory is that one thing that rich man has not defeated till now is his death. Now there is a place in Berkeley
there is a place in Berkeley scientific facility where rich people have stored their dead bodies from 1978. It started in 1976. So in 1978, these rich people have paid millions and millions of dollars and they have embalmed their body. तो जिसको हिंदी में बोलूं तो होता क्या है कि 1976 से एक फैसिलिटी स्टार्टेड है बर्कली यूएसए में. वहां पर क्या है कि एक फैसिलिटी है जहां जैसे हम लोग कॉड लाइफ देख रहे हैं, वो लोग जाके कॉड सेल वो लोग स्टोर कर रहे हैं 20-25 साल के लिए स्टेम सेल रिसर्च के लिए. तो रिच लोगों का जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसको वो लोग मम्मीफाई करके उसमें लिक्विड डाल के उनका केमिकल सोल्यूशन डाल के, जैसे सेल उनका डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज नहीं करेगा, उसको अच्छी तरह पैक करके क्रायोजेनिक फ्रिज में उसको रखा गया है, विच इज अराउंड -200 डिग्री फ़ारेनहाइट में. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब साइंस प्रोग्रेस कर जाएगा, बिकॉज दैट इज वन थिंग दिस रिच पीपल हैव नेवर कंट्रोल देयर डेथ. When science would progress in next 50 years, 60 years or 100 years, what would happen is कि वो लोग उसी में से बॉडी को निकाल के they would make these people alive. Yeah. Now I will say how it is coming to. ये तो 1978, 70s का बात स्टार्ट हुआ था. Yeah, this is very interesting. Yeah. Yeah. So अभी क्या है, आज के डेट में there is a thing called Lazarus gene. Lazarus is basically, I think, an angel who fell down and I think he died, and someone else came and gave him life again. So उसका reborn हुआ था in the biblical stories. So this is called as Lazarus gene research that is going on. What is going on is कि मान लीजिए कि मेरा अगर मान लीजिए देहांत हो जाता है, तो मेरे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में उनके पास मेरे डीएनए का सीक्वेंस रहता है कोई ना कोई पार्ट में. तो अभी रिसर्च में क्या चल रहा है कि सेकंड या थर्ड जनरेशन का डीएनए लेके उसका कॉम्बिनेशन करा के कैन दे मैच माय डीएनए सीक्वेंसिंग, उस पर रिसर्च चल रहा है, सीरियस रिसर्च चल रहा है. उससे क्या होगा कि अगर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ 150 साल बाद, अगर दैट टेक्नोलॉजी पॉसिबल, वो मेरे डीएनए सीक्वेंसेस में और एक आदमी को जन्म देंगे जो कि मेरा ही रीबर्थ करके होगा करके मुझे समझ में आएगा. दैट इज हाउ देयर माइंड वर्क्स. नाउ कमिंग टू दिस पेडोफिलिया और दिस सिक मेंटालिटी, उनके दिमाग में, इलाज के दिमाग में ये है कि जो यंग ब्लड होता है या लाइफ सोर्स होता है, दैट कीप्स देम यंगर फॉर लॉन्गर डेज. ठीक है. रशिया में एक आदमी का 7 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया. वो आदमी का उम्र 40 साल था. 7 times they have changed his blood. ठीक है. Whatever I am saying, I am not saying hearsay. Anyone who has a Google internet connection can go and research and you would find out the facts. तो 7 बार चेंज किए उसका यंगर ब्लड. So he was a 40-year-old man. अराउंड टीनेजर का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन किए. बेसिकली टीनेजर का ब्लड लिया, उसका ब्लड को निकाल के टीनेजर का ब्लड उसमें डाले. After 7 times, his friends and scientists were all commenting, and he was himself commenting that he was looking younger. ठीक है. There is a reason behind that. The 8th time क्या हुआ कि वो जो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया वो इन्फेक्टेड हो गया, वो आदमी मर गया. ठीक है. The basic point is, so this research is going on about the rich and elite, जो अमीर और जो elite लोग हैं, कि वो लोग जिए ज्यादा कैसे, नंबर 1, जवानी ज्यादा दिन बरकरार रहे, नंबर 2, और अगर मर गए तो वापस कैसे आएंगे. So if you see, yeah, please. Is Tom Cruise a part of it? Yeah, it is considered to be. It is considered like that, ma'am. Tom Cruise, Keanu Reeves, but no one. I also don't know. But yes, people say that, and apparently, see, it might be plastic surgery. It might not be that. It is very, very difficult to know if it is real or not at this point of time. They are experts in plastic surgery and blood transfusion. I think there are many in Hollywood. जो आपका दे कैरी ऑन आपका जो डेथ कल्ट होता है ना, which is Illuminati related basically, and I sincerely believe they are involved into this blood transfusion thing and everything to appear younger for larger period of time. I'm sure. I don't know if Tom Cruise or some other person is there, but I'm sure there are people who are doing it because it is getting done. Yes, Sandeep ji. बिल्कुल. Look, about Tom Cruise, I know a lot of people talking about Tom Cruise maybe doing these kind of things, but जैसे कि आपने बताया कि इतने जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स, जो प्लास्टिक सर्जन वगैरह आज के टाइम पे तो काफी ज्यादा हो गया. और आपने देखा होगा
सलमान खान जो हमारे दादाजी से भी बड़ी उम्र के हैं, वो भी उसमें मूवी में, रिसेंट मूवी में किस तरीके से चमका के जैसे कि पॉलिश करके बिठाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है उसको। कुछ तो कैमरा इफेक्ट ऑफ कोर्स, बट सारा कैमरा इफेक्ट नहीं हो सकता डेफिनेटली। और मैंने परसों भी बताया मीना मैम के उस पे, ऐसे लोगों को तो ऐसे कर देते होंगे, यू नो, एक टब चाहिए होता है इनको तो बोटॉक्स का, पूरे मुंह पे डाल दिया भैया, जो होना है होना है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन कभी दिखता ही नहीं है उस बंदे का। तो पता नहीं खाना भी वो सिरिंज से लेता है या क्या करता है, आई डोंट नो। बट इतनी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन जो संजय जी बता रहे हैं डेफिनेटली देयर इज अ थिंग, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी पढ़ा इस बारे में, इस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं। और अमेरिका सबसे पहले कोशिश करता है कि जो दुनिया में चीज लोग सोचते भी नहीं वो सबसे पहले ट्राई भी कर ले और उसका आविष्कार करके चाहे पास में रख ले, दुनिया को बताए भी ना। इस तरीके की अमेरिकन की जो सोच होती है वो डेफिनेटली होती है। और अभी किसी ने लिखा था माइकल जैक्सन भी कुछ बच्चों के उसमें अगर हम जाएं पीछे तो काफी न्यूज में भी आया था, और कुछ लोग कहते हैं माइकल जैक्सन बेबी जिंदा है। कुछ और चीजें भी याद आ रही है मेरी जिससे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का क्लोन है ये वो। एनीवे उस तरफ मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब जो ये बात बता रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है, और एक दो दिन में अभी कोई और अभी पी के इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली इस पे ये लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके की चीजें। और थैंक यू संजय जी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, बट डेफिनेटली इट इज, जो लोग सोच रहे हैं पहली बार सुन रहे होंगे इस तरीके की चीजों को, इट एग्जिस्ट। यस, I will tell you. I will to the viewers. I will tell why I am telling and why this is feasible or why it is the logical outcome of what is happening. See, our life cycle. I will tell about our biological life cycle. ठीक है? When we die, what happens? Actually, होता क्या है जब हम लोग मरते हैं? Apart from अपना जो धार्मिक व्यू है कि जो अपना आत्मा छोड़ के शरीर जाता है, अगर बायोलॉजिकली स्पीक करें या बायोलॉजिकली बोले तो हम लोग पैदा होने से बड़े कैसे होते हैं और जब अपनी मृत्यु होती है तो किस वजह से होती है, साइंस इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। अपना आत्मा को छोड़ के, अगर आत्मा स्पिरिचुअल केस को छोड़ दे तो बायोलॉजिकली होता क्या है, बेसिकली स्टेम सेल। जब हम लोग पैदा होते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं गॉड लाइफ की, बेसिकली स्टेम सेल पहला होता है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी का। जब स्टेम सेल से क्या होता है, अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं आपके अंग, आंख के अलग सेल हो गए, नाक के अलग सेल होंगे, कान के अलग सेल होंगे, आपके चमड़ी का अलग सेल होगा, और कौन सा सेल कहां पर जाके फिट बैठेगा वो प्रोग्रामिंग डीएनए में होता है, इसलिए डीएनए को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग, ये नेचर का लॉ है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि बिना ऑक्सीजन का आदमी मरता है। मैं ये बोलूंगा ऑक्सीजन के लिए ही आदमी मरता है। ऑक्सीजन इज द रीजन ऑफ पीपल डाइंग। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा देन विल डाई, बट द रीजन ऑफ वी डाइंग इज बेसिकली ऑक्सीजन। बिकॉज होता क्या है कि जो एनर्जी हमारा आता है आपका सेल के फंक्शन होने के लिए, मसल फंक्शन के लिए या कोई फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी आती है ऑक्सीजन से। होता क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का आपका सेल का रीजेनरेशन कम होने लगता है तो हम बूढ़े होने लगते हैं। होता क्या है कि जितना सेल मरता है उससे कम सेल बनता है, इसीलिए हम लोग बूढ़े होते हैं उसी प्रक्रिया में। And this oxygen actually goes and provides energy and it actually burns this cell. So this oxygen itself kills the cell. So our lifeline, which is oxygen, is our death sentence. That is how nature is very, very intelligent, that we cannot live without oxygen. And if we take oxygen, we would live for certain time. So that is a guarantee of nature. So that is how the cell structure works. Why people are doing this so that they can get away? Because they are thinking that through science only, they can break this cycle. They can reverse this cycle and get the cells living again. That is where I'm coming from. Yeah. So I think we've taken a little bit more than an hour. Thank you so much, both of you, Sajjad and Sandeep, for this very interesting conversation. It seems everybody is so happy to hear all of you and the kind of interaction that you have shared with them. There are many things that we can think that are true in it, and some, of course, we have to see for ourselves whether it will work out or not. And at the moment, Sandeep and Sanjay, the question that is still troubling our viewers is, why is CBI not working faster? Yes, ma'am. So that is a question on that note, which is going to be on that note, we'll end this session. Thank you so much, Sanjay, and thank you so much, Sandeep, for joining us and making this conversation so interesting. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Sabko jai Bharat. Good night.